नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है के 7th एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 6 एपिसोड में हमने समय बिताया पहले तो एक बहुत ही एक्सटेंसिव बैकग्राउंड बिल्ड करने में which led to the French Revolution in 1789. So episode 5th was mostly the first 6 years of French Revolution, which were full of activity, full of different type of governments coming in and going out. After that, in the last episode, we talked about the rise on and fall of Napoleon, who was ultimately defeated and dethroned after the Battle of Waterloo in 1815, and then he was exiled to the island of Saint Helena, where he died in 1821. And now, as soon as Napoleon was dethroned, see, we have to understand that there are two opposing forces that were working for a long time in France, and not just in France, but all the other European nations. One was, do we completely have government of people, or do we restore monarchy back to its original power? And this tussle led led to Louis XVIII, Louis XVIII becoming the king of France, the monarch of फ्रांस। और लुई 17 का क्या हुआ, तो ऐसा कहते हैं कि 1617 शायद जेल में ही मर गए और समथिंग लाइक दैट। सो लुई 18 becomes the monarch, and by now, like, the power of monarch is no more equal to what it was for Louis 15th or Louis 16th in his early days. It is greatly reduced, but there is still a monarchy back. And Louis 18 dies childless in 1824, और इसके कारण से फिर उनके जो कजिन है चार्ल्स 10th, उनको किंग बना दिया जाता है। अब ये देखिए, मतलब ये वाला जो पीरियड है, इट विल बी अ पीरियड वेयर समवन इज क्राउड मोनार्क, द कंडीशन स्टिल डोंट इम्प्रूव, देयर इज अ स्मॉल रेवोल्यूशन, देन अगेन समवन एल्स इज क्राउड मोनार्क, तो वही होगा। तो 1832 में क्या होता है, जुलाई रेबेलियन होता है, और इट इज अगेन अनसक्सेसफुल बिकॉज रेबेलियन इसलिए होता है बिकॉज देयर इज एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा, अगेन देयर इज huge economic depression, and because of that, like, people revolt again. And what happens after that is like, one, it is unsuccessful, and then there is another revolution in 1848, after which Napoleon's cousin becomes the monarch in 1851. And finally, in 1870, Napoleon's cousin is also deposed after France loses Franco-Prussian War. And this is when the French Third Republic was established. Um, and what happens is, when again the Republic is established, the initial presidents, the first two presidents, have like a huge pressure on calling back monarchy, on making again France a constitutional monarchy. But over time, these two presidents resist those call, and then the subsequent Republican president, they completely quash the callback of monarchy, and even completely quash the idea of it. And that is when France truly becomes a republic, and stays like that until 1940, after which um, फोर्थ रिपब्लिक इज एस्टैब्लिश। सो अभी जो 1870 में जो थर्ड रिपब्लिक एस्टैब्लिश होता है, उसमें बेसिकली यू हैव अगेन बाई कैमरल सिस्टम। बाई कैमरल मतलब दो हाउसेस हैं। एक हाउस है चेंबर ऑफ डेप्यूटीज, और चेंबर ऑफ डेप्यूटीज यूनिवर्सल सफरेज जिसे कहते हैं, कि वोटिंग राइट, सबको वोटिंग राइट मिला हुआ है, और यूनिवर्सल सफरेज से इलेक्ट हो रहे हैं chamber of deputies. And then there were um, senators, basically a senate that was elected by the elected representatives, तो उसको अपर हाउस कहा जाता था। और अभी भी लगभग सिस्टम ऐसा ही है। अब नेशनल असेंबली है, जो कि यूनिवर्सल सफरेज लोगों की वोटिंग से इलेक्ट करी जाती है, और दूसरी है सिनेट।
और इसलिए हमारे यहाँ पे भी जैसे अगर आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा भी वैसे ही दो टाइप के हाउसेज हैं। और आप देख समझेंगे कि लोकसभा लोग इलेक्ट करते हैं इसलिए ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा पावर उनमें रिसाइड करती है। एंड सेम applied to the chamber of deputies because they were elected by the people. They had more powers, but of course like senate had its own power, especially whenever there were amendments to be made to the constitution. Now this is abhi tak, I would say overall आप देखेंगे it took almost close to 100 years for all about 80 years for revolution to give France a third republic that was finally and truly a stable republic which ruled in which stayed in France until the fall just before Second World War. Um, तो क्या क्या हुआ, मतलब व्हाट ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, थोड़ा इसका कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। बिकॉज अगर आपने कभी कहीं सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज कॉल्ड एज द ग्रेट रेवोल्यूशन। तो समझते हैं कि मतलब ऐसा क्यों कहा गया। तो सबसे पहले समझते हैं कि सोशल लेवल पे चेंजेस क्या हुए। और जैसा कि मैंने बताया था कुछ बहुत पहले के फर्स्ट सेकंड थर्ड एपिसोड में कि सोशल स्ट्रक्चर्स वर एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव, राइट? देयर वर three estates. First was clergy, the second was nobility, and third was the commoner or peasants, and middle class. And ये जो थर्ड एस्टेट था, they comprised a huge population but were severely oppressed, they were heavily taxed, right? एंड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने देखा कि मिडिल क्लास इमर्ज्ड एज अ पावरफुल ग्रुप, right? They even became nobles which we called nobility of robes, right? And therefore like it completely demolished the social structure that had been prevalent for almost 800 900 years and replaced it with more of a more of a situation where now middle class was powerful, middle class was prosperous, replaced with a situation where church, the large swaths of land were confiscated from the church and they were divided amongst local property owners. And that again gave rise to like property ownership in the middle class. So this was a huge social change. And of course, like as the middle class got richer, it encouraged people to to be more against like a monarchical rule which has been so oppressive for all these years. दूसरा, जो आपका स्टेटस ऑफ कैथोलिक चर्च है, इट कंटिन्यूअसली आई वुड से was demolished step by step. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा मार्टिन लूथर ने जो रिफॉर्मेशन स्टार्ट करी थी, राइट? उस रिफॉर्मेशन, लाइक दैट रिफॉर्मेशन वाज स्टार्टेड बाय मार्टिन लूथर इन 1517। बस ये उसी का ही नतीजा था कि अब चर्च पे बहुत सारे अटैक्स होने लग गए थे, उनकी पावर पे अटैक्स होने लग गए थे। और दूसरा बात आप समझेंगे, जो मिडिल क्लास था वो एक्चुअली फुल रेवोल्यूशन के फेवर में कभी नहीं था। मिडिल क्लास जस्ट वांटेड फ्रीडम फ्रॉम चर्च। मिडिल क्लास वाज एक्चुअली ओके। अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट 3 इयर्स वाज अ मिडिल क्लास रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो पहले 3 साल थे 1789 से 92, वो मिडिल क्लास रेवोल्यूशन थे। और अगर आपको याद होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली उनको ऐसा राजा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। व्हाई? बिकॉज किंग्स एंड नोबेल्स वर द पीपल हु वुड गिव मिडिल क्लास जॉब्स। ये जो सरकारी नौकरियां होती थी वो तो मिडिल क्लास की ही मिलती थी ना। और इसलिए मिडिल क्लास को डर लगता था कि अगर किंग ही हट गया तो हमको कौन नौकरी देगा। तो मिडिल क्लास was not the one behind complete revolution. It was the lower economic classes, peasants और गरीब लोग जिन्होंने complete revolution की डिमांड करी। और आपको फिर अब समझ में आएगा, इसलिए मिडिल क्लास only wanted freedom from church and that's what they ensured. That's why the institution of church completely declined and lost power, at least within France and later on in the rest of the Europe,
as well in the subsequent years. तीसरा क्या हुआ जो मैंने बताया, जो एक्सट्रीमिस्ट साइड था, आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आई 1789 टू 92, उसके बाद रीन ऑफ टेरर और एक्सट्रीम जैकोबिन्स वाली गवर्नमेंट आ गई। बट ये जैकोबिन वाले जो प्रिंसिपल थे, विच वाज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जो कंप्लीट यूनिवर्सल सफरेज और डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल थे, उसी से ही आगे चल के कार्ल मार्क्स इंस्पायर्ड हुए, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था उन्होंने जैकोबिन रेफरेंस दिया। एंड इफ यू रिमेंबर, जैकोबिन्स वर इंस्पायर्ड बाय जॉन जॉक रूसो। तो अल्टीमेटली दैट इज द कनेक्शन ऑफ सोशलिज्म दैट कार्ल मार्क्स प्रपोज एंड प्रोपोगेटेड विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो जैकोबिन इंस्पायर्ड थे, उनको जो रूरल क्लास है, जो वर्किंग सोशल क्लास है, उनके लिए बहुत फील हुआ, और उन्होंने उन्हीं प्रिंसिपल पे आगे जाके सोशलिज्म का आइडिया दिया। तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा कि 100 ईयर वॉर जो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड में, उस समय नेशनलिज्म एक कॉन्सेप्ट बन के उभरने लग गया था, बिकॉज फ्रेंच एंड इंग्लिश पीपल स्टार्टेड सीकिंग नेशनल आइडेंटिटीज, राइट? नेशनल चर्चेज एस्टैब्लिश हो गए थे, and now that same idea continued and got extreme levels of strength under नेपोलियन। आप देखिए, देखिए नेशनलिज्म का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि सब कुछ सेंट्रलाइज होने लगता है। और सेंट्रलाइजेशन का रीजन क्या था कि अब नेपोलियन से लड़ने के लिए सारे नेशंस को एक सेंट्रलाइज टैक्स सिस्टम चाहिए, सेंट्रलाइज मिलिट्री चाहिए, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज चाहिए, सब कुछ सेंट्रलाइज। एंड दैट इज व्हाट happened. One of the biggest impact of French Revolution was the rise of nationalism and centralization of fiscal and military policies, in not just France but in the nations that were adjacent to France in the Europe. और आप देखेंगे, because French nationalism was so fervent and so out there, and because of Napoleon, that nationalism again spread to जहां जहां नेपोलियन ने बेसिकली कॉन्कर किया, वहां वहां ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज, ये आइडिया स्प्रेड करने लग गए। और आपको याद होगा, इसीलिए ही जो सारी मोनार्कीज थी यूरोप में, वो अगेंस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, राइट? उनको डर था, और ये डर सही साबित हुआ, और आगे चल के जैसे जैसे जहां जहां ये आइडियाज पहुंचे, वहां वहां रेबेलियन, रेवोल्यूशन और लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दी। आप आगे चल के ये भी देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव इंस्पिरेशन एंड आइडियाज टू जर्मन यूनिफिकेशन, और वो फिर जर्मन नेशनलिज्म जो राइज हुआ बाद में ऑटो वन बिस्मार्क के अंडर, वो यहीं से ही इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट ऑटो वन बिस्मार्क खुद प्रूशिया के रहने वाले थे, और आपको जैसे पता होगा कि प्रूशिया पे फ्रांस ने या नेपोलियन ने खूब उनका टेरिटरी लिया था, खूब उनसे खूब उनको डिफीट किया था। और इसी कारण से आप देखेंगे कि यही चीज ने वॉन बिस्मार्क को बाद में इंस्पायर करा, और इसीलिए फ्रैंको प्रूशियन वॉर्स बाद में जो हुए, दे वर अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो अब ये तो हुआ विद इन फ्रांस और थोड़ा सा विद इन यूरोप, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट। थोड़ा आउटसाइड फ्रांस भी देखते हैं। आपको एक चीज याद होगी कि जब नेपोलियन का रूल चल रहा था, तब नेपोलियन हैड इन्वेडेड स्पेन, हैड ऑक्यूपाइड मड्रिड with some 100 soldiers and dethroned the king there. अब देखिए, जब किंग्स डिथ्रोन होते हैं ना, तो उनकी वो वल्नरेबल दिखने लग जाते हैं, और जब भी एक किंग वल्नरेबल दिखता है, उनके कॉलोनीज उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का सोच लेती हैं, है ना? और वही का वही हुआ साउथ अमेरिकन कॉलोनीज में।
South American colonies started protesting against the Spanish occupation there because they saw that king as a weak king. है ना, उन्होंने देखा कि अरे ये मोनार्क को तो नेपोलियन ने डिथ्रोन कर दिया. And those revolution, those calls for independence led to independence of Brazil in 1821. तो ये एक बहुत ही बड़ा consequence हुआ था कि South American colonies started revolting against the Spanish occupation. दूसरा एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और हुआ आउटसाइड फ्रांस was these ideas when they spread across कैसे, through literature, through books, through people who were a part of this revolution. These ideas started inspiring many different kinds of enlightenment and जिसे कहते हैं पुनर्जागरण even in the other parts of the world. And the debates between should we keep a constitutional monarchy or completely a rule by people became extremely heated and active across countries like Great Britain, Germany, इटली. बाद में इटली भी यूनिफाइड हुआ और वहां पे भी ऐसे ही ये सब कॉन्वर्सेशन हुआ. और बेसिकली जितना आपका यूरोप है और जितनी भी ये यूरोपियन कॉलोनीज थी वहां पर भी ये सेम आइडियाज फैलने लग गए. um, तो अल्टीमेटली इफ यू सी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी देयर वाज अ रीजन इट इज कॉल्ड अ ग्रेट रेवोल्यूशन. एंड इट हैड consequences not just on France or not just during that time, but आप देखेंगे फॉर नेक्स्ट 100 to 150 years इसके कॉन्सिक्वेंस रेवर्बरेट होते हुए दिखेंगे. इसके कॉन्सिक्वेंस आपको दिखेंगे जिस मतलब आगे चल के जब आप जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे या आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रीजंस के बारे में पढ़ेंगे तो जो उसके थोड़े छोटे थ्रेड्स हैं, या आप इवन रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, लेनिन के बारे में पढ़ेंगे. लेनिन को किसने इंस्पायर किया? लेनिन इंस्पायर्ड थे मार्क्स से. मार्क्स को किसने इंस्पायर्ड किया? जैकोबिन्स ने. और जैकोबिन को किसने इंस्पायर्ड किया? जॉन जॉक रूसो ने. तो ये इस तरीके के जो कनेक्शंस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि के फ्रेंच रेवोल्यूशंस इम्पैक्ट एक्सीडेड far and wide geographically and far and wide even on the timeline of recent history. um, आई थिंक यहाँ पर मैं ये 7 एपिसोड सीरीज को विराम देना चाहूंगा. बहुत ज्यादा मजा आया मुझे, खुद को बहुत अच्छे से समझ में आया. बहुत सारी चीजें जो आज हम देखते हैं अपने मॉडर्न वर्ल्ड में. देखिए, हिस्ट्री जैसे मणिकांत सर कहते हैं ये एक कम्युनिकेशन है प्रेजेंट का पास्ट के साथ. टू अंडरस्टैंड आर प्रेजेंट बेटर, हम अपने प्रेजेंट को बेटर समझने के लिए पास्ट को एक बार देखते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं. और मुझे ऐसा लगा कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने जब पढ़ी और ये पॉडकास्ट बनाए तो मुझे भी अब ये कुछ कुछ जो यूरोप में स्ट्रगल्स हो रहे हैं, कुछ कुछ ये जो बहुत ज्यादा हीटेड सिचुएशंस हो रही है अभी करंटली यूरोप में, उनको समझने का एक नया डिमेंशन मिला. उनको उनको समझने का एक नया बैलेंस्ड अप्रोच थोड़ा थोड़ा मिला. प्लस ये एक पॉडकास्ट सीरीज भी एज अ बाय प्रोडक्ट बनी जिसको करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड I hope that I continue to produce similar episodes on different parts of history. Um, until then, um, thanks and goodbye.